Hi viewers, welcome back to my channel Gitanli English Academy. Viewers, today I have come here with a video concept. Previously, I used to come here with the short videos and short reels, but today I will explain you something related to tenses. But that doesn't mean that I'm going to start with the tenses topic itself, but I have chosen something very different concept for you all, which many of us do not know, so I want to help you with that. So here I go. Viewers, you can see something on the board. I have written, I do sing, I sing, and then I wrote, Hari does sing, Hari sings. Now you can see there are a lot of variation over here. Now what is that? ये है क्या exactly? In the first sentence you can see I do sing, and then you must have seen does sing, and in the second one there is I sing, there is no S, but here it is Hari sings, that is S over here. Now what is exactly all about? See, this kind of structure is related to the simple present tense. And what is simple present tense? Simple present tense talks about routinical action. Well, I'll let you know about it in great detail when I start the tenses topic. But today I'm just telling you what is this concept all about, and why is this so much of variation, and what is verb conjugation all about. Now let me discuss it. I do sing and I sing. If let's suppose somebody asks you what do you do, and you are learning, how to sing, or you are a student of drama, music, or arts or something, and someone asks you what do you do. Let's suppose you are pursuing BA in music or something, and you want to be a singer one day, just like any other famous or well-renowned singers like Arijit Singh of today's era, or Sonu Nigam, or Lata Mangeshkar, late Lata Mangeshkar, who are very much honorable people otherwise. So now I need to tell you that if someone asks you what do you do, and you want to say कि मैं गाना गाता हूँ या मैं गाना सीखता हूँ, so you will say I attend singing classes, or I sing a song every day. That is your routine. But if someone asks you, oh really, it might be it has some kind of doubt on you, or he doesn't have a doubt, but otherwise he's clarifying, he's confirming a bit more. So then he would ask, oh really, then how should you answer? How do you think that you should answer? Should you answer in the same tone, in the same way, in the same manner? I sing, yes, I sing. No, you should say, if you are really honest, you are really doing it, and you want to prove yourself that yes, you are doing that, you do that, then you should say, I do sing a song. I repeat, I do sing a song. मैं तो गाना गाता हूँ. And one more, very simple, which is a part of every student's life. Let's suppose your teacher asks you, what do you do after reaching home? आप अपने घर पहुँचने के बाद क्या करते हो? So you say, ma'am, I revise the concepts which you teach in class, or I complete my homework. So if let's suppose teacher asks you, oh really, she has a doubt or maybe something, she's a bit skeptical about you, and she asks you, oh really, then you shouldn't answer like this, yes ma'am, I complete your homework, I revise all the concepts. That's very simple, very plain tone, and not even if relevant type. It's very irrelevant. You should say instead, your answer should be, your reply should be in this way, in this manner. Yes ma'am, I do revise your concepts. Yes ma'am, I do complete my homework. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए रिवाइज करता हूँ, और मैं तो आपका होमवर्क कंप्लीट करता हूँ या करती हूँ. तो ये जो तो है, दिस तो इज ईदर डू और डस. I repeat that to in Hindi is do or does in English. So this is a stress case. ये है stress case. अब स्ट्रेस केस का मतलब कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है. यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस. ऑल यू नीड टू पुट एम्फोसिस ऑन योर स्टेटमेंट, ऑन योर एक्शन स्टेटमेंट. क्योंकि टेंसेस क्या है? एक्शन स्टेटमेंट ही तो है, उसमें कुछ काम ही तो हो रहा है. तो काम पे जोर डालने वाला शब्द कि
ये तो करता हूँ, मैं तो ये करती हूँ, वे तो ये सब करते हैं, तो वहां पे देयर यू विल यूज ईदर डू और डज। अब क्वेश्चन आता है डू कहाँ, डज कहाँ। सो यू मस्ट बी नोइंग, इफ नॉट देन आई कैन हेल्प यू, कि अगर आई हो, यू हो, वी हो, या दे हो, या एक से ज्यादा नाम हो कोई भी, ठीक है, एक से ज्यादा नेम हो गए, और मोर देन वन नेम और नाउन, ठीक है। आई रिपीट, नेम और नाउन क्या होते हैं, जैसे एक्सेट्रा, ऐसे ही कुछ नेम और नाउन, जैसे नमन एंड अमन, ओके, और श्रुति एंड गीतिका। तो ये क्या है, दो नेम्स ही तो हैं, तो एक से ज्यादा जितने भी नेम्स हों उसमें डू आ जाएगा। नाउन, बॉयज डू, गर्ल्स डू, इस तरह से। ऐसे आई डू, यू डू, दे डू, वी डू। और डस कहाँ आएगा, ही, शी, इट, वन, कुछ भी हो, समथिंग विच इज वन इन नंबर, नेम और नाउन अगेन, तो वहां पे भी आप क्या लिखोगे, देयर ऑल्सो यू विल यूज डस। तो इसके लिए डू, इसके लिए आएगा डस, ठीक है। सो इट इज डू और डस। तो अब ये समझ आ गया, आई के साथ मैंने क्या पुट किया, डू, एंड हरी जो कि एक नेम है किसी का, उसके साथ मैंने क्या यूज किया, डस। और मैंने बताया था डस में एक नाम आता है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका मतलब क्या है, मैं तो गाना गाता हूँ, हरि तो गाना गाता है। हरि नाम का लड़का तो गाना गाता है। हरि भगवान विष्णु भगवान भी हैं, उनकी बात नहीं हो रही, हम एक गॉड की बात नहीं कर रहे, हम एक इंसान, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। हरि डज सिंग। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, आई सिंग, हरि सिंग्स। आई के साथ डू क्यों नहीं आया, क्योंकि ये स्ट्रेस केस नहीं है। स्ट्रेस केस नहीं है तो हमें डू डज कुछ भी नहीं लगाना। We don't have to put any stress, any do or does, because this is not a stress case. This is a no stress case. ये क्या है, no stress case. It is not a matter of emphasis. However, इधर आप देख रहे हो, you must be seeing हरी sings. यहाँ पे s लगा हुआ है, यहाँ पे does नहीं है। यहाँ पे इसकी तरह जहाँ पे ऐसे यहाँ do नहीं है, वहाँ पे does नहीं है, बट यहाँ पे s है। Why so? Because यहाँ पे does का es वाला जो पोर्शन है, एलिमेंट है, इसको हमने उस, कह सकते हो इसकी जो सोल है, डस की जो आत्मा है, उसमें उसे हमने यहाँ इंसर्ट करना है एस के फॉर्म। कभी कभी एस लगाएंगे, कभी कभी ई एस लगेगा, कभी ऑलरेडी ई लगा होगा तो हमें सिर्फ एस लगाना है। अब वो हमें कैसे पता लगेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन स्पेलिंग्स, बट अदरवाइज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हरी सिंग्स, यहाँ पे डज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस केस नहीं है। और एस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें डस की प्रेजेंस यहाँ पे फील करवानी है, एक्सप्रेस करनी है। अगर एक पर्सन के लिए मैं ये रिमूव कर दूं एस को, फॉर अ सेकेंड आई रिमूव इट, ठीक है, मैं इसको ब्लर कर देती हूँ फॉर अ सेकेंड, और मैं यहाँ पे ये सेंटेंस बनाती हूँ, आई सिंग, हरी सिंग। तो आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, एक्सेप्ट आई और हरी के? आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये डस केस था या ये डस केस है। डस केस ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं है। वो डस केस है, इसलिए उसकी प्रेजेंस को फील कराने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एस लगा दिया। यहाँ पे मैं डार्क कर रही हूँ इस टाइम, इसको हमने डार्क कर दिया, एस लगा दिया, मतलब यहाँ पे सेंटेंस बन गया हरी सिक्स, ठीक है। और आपको पता है इसको कहते क्या है, व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्ब कॉन्जुगेशन, जिसका मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होता है? वर्ब कॉन्जुगेशन होता है जब आप वर्ड को कॉन्जुगेट करते हो, मतलब कि आप, जब आपका वर्ब क्या है इसमें, सिंग, ये तो आपको पता ही है एक्शन वर्ड। सिंग को आपने उसमें कुछ एडिटिंग की, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, कुछ चेंजेस किए एज पर द हेल्पिंग वर्ब। आपने हेल्पिंग वर्ब की वजह से उसमें कुछ चेंज किया, तो वो जो आपने चेंज किया उसे कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। आई रिपीट माई सेल्फ, वर्ब कॉन्जुगेशन। ऐसे ही सिंपल पास्ट में भी होता है, लोगों को पता ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं है, कभी वो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कभी वो डिड लगाते हैं, कभी डिड लगता है, कभी सेकंड फॉर्म सडनली आती है, तो वो क्यों आ जाती है, अब आपको पता लग जाएगा। मैं अपने आगे अपकमिंग वीडियोस में सब बताऊंगी, बट राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब कॉन्जुगेशन प्रोसेस एंड स्ट्रेस नो स्ट्रेस।
वेल डोंट वरी, आप सोचोगे कि मैम ने टेंस तो क्लियर किया नहीं और ये एडिशनल इतनी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, बता दी। प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नया बताया है राइट नाउ, प्लीज लिसन टू इट और सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करो। अब मैं आपके लिए एक और एग्जांपल बना देती हूँ। जैसे मैंने बोला मैं वेजिटेबल्स खरीदती हूँ, या मैं सब्जियां खरीदती हूँ, या मैं लेटर लिखती हूँ। इन शॉर्ट लेटर लिखती हूँ तो मैं बोलूँगी आई राइट अ लेटर। अब अगर मुझे ये कहना है मैं तो लेटर लिखती हूँ तो आई डू राइट अ लेटर। अब अगर मैंने ये बात किसी और के लिए कहनी है तो मैं बोलूँगी, उनका नेम ले लेती हूँ, लेट सपोज द नेम इज गीतिका। गीतिका लेटर लिखती है, गीतिका तो लेटर लिखती है। अगर हम बोलें गीतिका तो लेटर लिखती है स्ट्रेस केस, तो गीतिका के साथ क्या आएगा, डस। या यू आर राइट, गीतिका डज राइट अ लेटर। और अगर मुझे बोलना है गीतिका लेटर लिखती है, डस केस है बट डस अदरवाइज पुट नहीं करना बिकॉज इट इज नॉट अ केस ऑफ स्ट्रेस और मैटर ऑफ एम्फेसिस। तो हम क्या बोलेंगे, गीतिका राइट्स अ लेटर। आई रिपीट, गीतिका राइट्स अ लेटर, क्योंकि उसमें एस लगा ड्यू टू दैट डस ट्रीटमेंट। I think this concept is somewhere different for you or something very interesting for you as well। और ये चीज़ों के बारे में आई एम श्योर नहीं पता होगा आपको, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो प्लीज़ लर्न समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग वेरी न्यू। और मैं जस्ट वांट टू टेल यू कि आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए इंग्लिश वीडियोस देखिए, न्यूज़ चैनल्स को जिप ऑन कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, यू विल गेट टू नो मोर ट्रेंड्स, मोर अपडेट्स अबाउट इंग्लिश। उसमें बहुत ऐसी इंग्लिश यूज़ होती है और उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू स्पीक ट्रूथ, और अगर आप बोलते हो और आपको बात पे जोर डालना है तो आप सिंपली ऐसे नहीं बोलोगे आई स्पीक ट्रूथ, आप बोलोगे यस आई डू स्पीक ट्रूथ। आई रिपीट, आई डू स्पीक ट्रूथ। वहाँ ये नहीं बोलना यस आई स्पीक ट्रूथ, या मैं अच्छा सच बोलता हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ, क्योंकि बात पे जोर डाला जा रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पूरा बोलने का कोई स्टेटमेंट पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिर्फ आप डू और डज से भी बात खत्म कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपने क्रिश्चियन वेडिंग्स देखी होगी, उसमें मैरिज वोज होते हैं, आपस में ग्रूम एंड ब्राइड खड़े होते हैं, बिशप खड़ा होता है और वो उनको आपस में एक दूसरे के लिए और वो दिलवा रहे होते हैं, वो दिलवा रहे होते हैं, वचन पूरे करो, ये करोगे वो कर, तो वो मानता है, वो ग्रूम कहता है सिंपली आई डू, गर्ल ब्राइड क्या कहती है आई डू। इतना लंबा कोई नहीं बोल सकता कि ये आई डू प्रोटेक्ट हर, आई डू प्रोटेक्ट हिम, आई डू यू नो केयर फॉर हर, टेक केयर ऑफ हर एंड ऑल दैट। तो इतना लंबा बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली बोलो आई डू। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। वो क्या सीखते हैं, सिंपली सीखते हैं एस ई एस लगाना है, एस ई एस नहीं लगाना है। आई सिंग, हरी सिंग सीख लेंगे, उस पर सीधा नॉट पे आ जाएंगे, नेगेटिव पे आ जाएंगे, डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा। और ये सीख लेंगे इंटेरोगेटिव, डू आई सिंग और डज हरी सिंग, इस तरह की चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ये कभी समझते नहीं है, दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे डोंट इवन गेट दिस थिंग इनटू गो इनटू दिस आइडिया कि ये एस आ कैसे जाता है और कभी हट कैसे जाता है। तो ये इसका रीज़न है, दिस इज अ वैलिड रीज़न। काइंडली have a look at it and try to go through this video minute by minute, very minutely. Definitely it will be very helpful for you. So for today it's all from me, it's all from my side, and I hope you would definitely share your love, your your attention towards me, on me, in the form of your appreciation, and that can be done only if you hit our like button, share our videos and subscribe our channel. So kindly do so. I will definitely come with more such type of useful tips and quickie tips and useful lessons, and till then I'm not coming, so please stay protected, stay blessed and keep smiling. Bye bye, take care, and see you in the next session. Bye bye.